Assalamu alaikum students. I welcome you all in our next lecture. Previously, we have been studying about coordination and response. In the last lecture, we studied about neurons and we also studied about their various features and their functions. The most important thing that we studied previously was about how messages are conducted using the neurons. Technically, neurons are those cells that are basic structural and functional unit of our nervous system. So neuron is that cell that carries messages from one part of the body to another part. And if neuron is taking the messages from my hand to the brain, to the central nervous system, so we have to study, the next thing that we will study today is the brain, that how brain assess or receive that message that was perceived from the various parts of the body. So when it comes to mammalian brain, so it is one of the most organized and efficient part of the body, which technically decides and it is able to judge different various variables in your life. So when it comes to mammalian brain, it has three main parts. The first one, forebrain. Second, midbrain. And third one is hindbrain. Brain का सबसे बड़ा portion, I mean the largest portion of the brain is the forebrain, the first part. And forebrain is the place जहाँ पे सारी memories, आपकी सारी intelligence, everything जो आपकी याददाश्त से related है वो सब आपका forebrain में. Then it comes the midbrain. Midbrain, name describes itself, middle of the brain. And the last part is hindbrain, the back side of the brain. अच्छा, हमारी बॉडी के सारे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, हमारी थिंकिंग्स, हमारे सारे एक्शंस, वो सब के सब रिलेट करते हैं इन तीनों पार्ट्स के साथ. अगर कोई एक पार्ट भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, मींस इफ आई एम सेइंग कि भी फोरब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर मेमोरी, तो अगर मिड ब्रेन काम नहीं करता तो मैसेजेस फोरब्रेन तक जा ही नहीं सकेंगे. सो इन सब पार्ट्स का इक्वली हेल्दी होना और प्रॉपर फंक्शन करना जरूरी है आपके हर तरह के अदर फंक्शंस के लिए. Okay, when it comes to point number 1, forebrain. तो इसमें first point, it is the largest part, right? इस largest part में further आगे further parts हैं, blue से mention करेंगे इसको. जो सबसे बड़ा portion है हमारे पास जो blue में यहाँ पे diagram में है, it is cerebrum. And cerebrum is responsible for holding all your memories and intelligence. ये जो आपको जितनी curves नजर आ रहे हैं, जो noodles ऐसे दिख रहे हैं आपको, these are actually grooves and fissures. Grooves and fissures. Grooves and fissures हम technically इन चीजों को कहते हैं. These are grooves and fissures. और ये grooves and fissures में अगर हम इस एक एंड से दूसरे एंड से पकड़ को ओपन करते हैं तो एक बड़ी सी लाइन बन जाती है. सो एक बहुत सारा एरिया एक छोटी जगह पे, एक छोटी कॉम्पैक्ट जगह पर पैक्ड है. सो दिस इज व्हाई हम उसे ग्रूव्स एंड फिशर्स कह रहे हैं. और इसी वजह से, अच्छा एक और बात, हमारी इंटेलिजेंस डिपेंड करती है इस सारे एरिया के ऊपर. द मोर द सरफेस एरिया ऑफ द सेरेब्रम, once again, the more the surface area of the cerebrum, the more will be intelligence. हमारी मेमोरी इतनी ज्यादा होगी जितना ये सेरेब्रम का पोर्शन ज्यादा होगा. अच्छा, सेरेब्रम की बिल्कुल बेस पे, आई एम रिमूविंग दिस थिंग, बिल्कुल बेस पे देयर इज अ हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. सो फोरब्रेन के हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, सेरेब्रम,
hypothalamus or pituitary gland. Cerebrum का तो बता दिया भाई, it is responsible for maintaining your memory and intelligence. The other part, hypothalamus, homeostasis में पढ़ा था hypothalamus के बारे में, that it controls our temperature. आपकी बॉडी का टेम्परेचर, लेट्स सपोज आप अभी एसी में एकदम से बाहर चले जाएंगे तो आपको स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, तो जो बॉडी ने रिस्पॉन्स जनरेट किया वो मैसेज कहां तक गया, वो हाइपोथैलेमस में गया मैसेज टू द फोर ब्रेन. हाइपोथैलेमस ने असेस किया भाई ये एकदम से गर्मी में आ गया है, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज कर गया, तो हमें स्वेटिंग करनी है ताकि स्वेटिंग में जब इवेपोरेशन हो तो बॉडी का टेम्परेचर वापस कूल डाउन किया जा सके. सो हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली अ हीट और कोल्ड सेंटर ऑफ द बॉडी. देन आता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड. एक्सक्रीशन में प्रीवियसली जो हमने चैप्टर पढ़ा था, एक्सक्रीशन में एक हार्मोन हमने स्टडी किया था व्हिच वाज एंटी डायरेटिक हार्मोन. पिट्यूटरी ग्लैंड सेवरल हार्मोन्स की सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, बट जो हमारी स्टडी से लिंक्ड है इस वक्त, एंटी डायरेटिक हार्मोन, यहां पे लिखी दूं ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन वाज इन्वॉल्वड इन रीअब्जॉर्प्शन. भाई अगर पानी बहुत ज्यादा पी लिया तो एंटी डायरेटिक हार्मोन कम रिलीज होगा, अगर आपकी बॉडी में वाटर लेवल बहुत कम हो गया तो एंटी डायरेटिक हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा ताकि किडनीज में रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो. ओके, दीस वर द थ्री थिंग्स. ओके, उसके बाद आता है हमारे पास मिड ब्रेन. नेम डिस्क्राइब्स इटसेल्फ. ब्रेन के मिडल में इट इज द मिड ब्रेन. टेक्निकली इट एक्ट एज अ रिसेप्शनिस्ट. बॉडी से जो भी मैसेज जाएगा ब्रेन तक वो मिड ब्रेन से होके जाएगा. सो मिड ब्रेन फर्दर आगे डिसाइड करता है भाई ये मैसेज आ रहा है फिंगर से और ये डेंजर स्टिमुलस है या कौन सा भी है, व्हाटएवर एल्स, उसने वहां पे डिसाइड करना है कि इसको कहां पे भेजना है. जस्ट लाइक इन योर स्कूल, आप अपने रिसेप्शनिस्ट के पास आते हैं, आप कहते हैं भाई मुझे किसी टीचर, उर्दू के टीचर से मिलना है. देन वो उसको उर्दू के टीचर को कॉल करती हैं. आप उन्हें कहो उर्दू के टीचर को मिलना है, वो साइंस की टीचर को कॉल करें. डजंट मेक सेंस. सो मिड ब्रेन एक्ट एज अ रिसेप्शनिस्ट. एक ये. सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट कंटेन्स ऑप्टिक लोब्स. ऑप्टिक लोब्स मींस कि ये आपकी विजुअल रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड है. आपका मिड ब्रेन जो आप देख रहे हो, इन सब की विजुअल रिफ्लेक्सेस से, लेट्स सपोज कि भी आप सिंपली नॉर्मली ऐसे बैठे हो और एकदम से आपके आगे हाथ आता है तो आप क्या करोगे, आंखें बंद हो जाएंगी, यहां पीछे की तरफ मूव करेंगे. तो वो जो विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा है आपका मिड ब्रेन. एनफ फॉर दिस. लास्ट में हमारे पास इट इज हाइंड ब्रेन. When it comes to hind brain, तो hind brain के दो पार्ट हैं. यहां पे ये दो पार्ट पहले मैं मेंशन कर दूं. ये जो लास्ट पे आपको फ्लॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इट इज सेरिबेलम. दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और एक क्वेश्चन भी राइज होता है, भाई डिफरेंशिएट बिटवीन सेरिबेलम एंड सेरिब्रम. सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, इट इज द लार्जेस्ट मोर पार्ट ऑफ द ब्रेन. और उसके बाद सेरिबेलम इज द स्मॉल पार्ट और वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है. दोनों के फंक्शंस डिफरेंट हैं. सेरिब्रम मेमोरी और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है. सेरिबेलम आपके कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस को. इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, मैं गिर नहीं रहा इस तरह से, आप अपने बैलेंस को कंट्रोल कर लेते हैं, भागते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए, चलते वक्त, बोलते वक्त, हाथों की मूवमेंट, आपके इवन स्पीकिंग मूवमेंट्स, ये सब मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहा है आपका सेरिबेलम. सेरिबेलम आपकी सारी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है. कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन. और लास्ट पार्ट है इसके पास मेडुला ऑब्लोंगाटा. हाइंड ब्रेन में दो पार्ट्स हैं, एक सेरिबेलम से मेंशन कर दूं,
second one is medulla. Medulla oblongata. ये पार्ट आपकी सारी इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. कौन कौन सा? आपकी ब्रीदिंग मूवमेंट, आपका हार्ट रेट, पेरिस्टाल्सिस, जो फूड आपने इनटेक कर ली थी अब वो आपकी इंटेस्टाइन में मूव कर रही है. आपके गट में जो फूड मूव कर रही है उस पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को ये कंट्रोल कर रहा होता है. आपकी जितनी भी इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, 99% इनवॉलेंटरी एक्शंस आपका मेडुला ऑब्लिंगाटा कंट्रोल कर रहा होता है. ऑल इन ऑल आपके जितने भी रिसेप्टर्स हैं बॉडी में, दे टेक मैसेजेस फ्रॉम योर बॉडी. वो मैसेजेस फर्दर कहां पे आते हैं? वो आते हैं मिड ब्रेन में. देन मिड ब्रेन डिसाइड्स कि भाई वो मैसेज किस सेंटर का है या ब्रेन के किस पार्ट में उस मैसेज को जाना है. आइदर इट विल गो टू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. जिस भी पार्ट में जाना है उस पार्ट में उसकी प्रोसेसिंग होगी, अगेन वो मैसेज आएगा मिड ब्रेन तक एंड देन उसके बाद आगे थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. अच्छा, ये जो मेडुला ऑब्लिंगाटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड एंड इट फॉर्म्स, थैंक यू, दिस पार्ट एक्सटेंड डाउनवर्ड और ये आगे डाउनवर्ड एक्सटेंड करके स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म कर देता है. नेक्स्ट जो कल का लेक्चर है उसमें इंशाल्लाह हम स्पाइनल कॉर्ड को कवर करेंगे एंड देन वी विल मेक अ प्रॉपर सिनेरियो कि मैसेजेस आपकी रिसेप्टर्स से इफेक्टर्स तक पासिंग थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से एक लूप क्रिएट करते हैं. होप यू हैव अ गुड डे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.